Good morning, students. So let us begin our class. In the previous class, we have already seen about the bare bones of Python programming. Under that, we have seen some components that can be used for creating a Python program. So what were they? So those were expressions, statements, comments, functions, blocks and indentations, out of which we have already gone through with what expressions are, what statements are, and what comments are. Under the comment section, we have seen single line comment as well as multiple line comments. As you can see on your screen right now, multi-line comments can be written in two ways. The first way will be using hash in each and every line before starting the comment, and the second way that we can use is this, where we can use triple quotes at the beginning and at the end of the line, and you can write as many lines as you like, so that will be counted as what? That will be counted as a comment. So these if we type comments like this, like in triple quotes, so that will be called as what? That will be called as doc strings. ये हमको ध्यान रखना है कि that is also known as doc strings. ये जो बाजू में आपको नोट लिखा हुआ दिख रहा है, इस नोट में आप देख पा रहे होंगे doc strings की डेफिनेशन यहाँ पर इन्होंने लिखकर बताई हुई है. आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ. हम ये हमारा कल का था रिवीजन, अभी हम आज की क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं. दिस इज रिलेटेड टू फंक्शंस. ये हमारा फोर्थ कंपोनेंट है जिसके बारे में अब हम देखने वाले हैं. ये है फंक्शंस. नाउ व्हाट आर फंक्शंस? फंक्शंस का क्या काम होता है, क्या करते हैं पाइथन प्रोग्राम में, ये क्या रोल प्ले करते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं. लेट अस सी व्हाट डेफिनेशन दे आर गिविंग टू अस. A function is a code that has a name and can be reused or executed again by specifying its name in the program where needed. ये जो फंक्शन होता है, फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए. ना कि सिर्फ पाइथन बट जावा, पीएचपी या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप सीखोगे, आपको फंक्शन ऐसा लगेगा कि इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बिकॉज व्हाट इट जनरली डू इज you can create a function, you can define what that function will do, and you can give a name to that function. Now once it is done, you can use that name of the function. Like I have created a function named sum, sum, sum. What it will do? So I have defined inside that it will calculate the total of the digits that I will be giving to the program. So that is the function sum. Now whenever I need to calculate the sum of various digits, so I don't need to write the formula a plus b, b plus c, c plus d, anything like that. Or the only thing that I need to do is I will be writing sum and writing the function's sign. What is the sign of function? So two parentheses, as you can see here, cu is written, cu function. So two parentheses generally define that it is a function. All right, this one. As you can see, this one, cu function, the sign which is put over there, it is of function. All right, so function बनाने से क्या फ़ायदा होता है? आप एक बार फंक्शन क्रिएट कर दो और आपके पूरे प्रोग्राम में जितनी भी मल्टीपल टाइम्स आप इस फंक्शन को यूज़ करना चाहते हो, आप यूज़ कर सकते हो. आपको बार बार वहाँ पर उस फंक्शन के फॉर्मूले को लिखना नहीं पड़ेगा. अगर आपको पता है कि मेरे प्रोग्राम में मैं टोटल बहुत बार करने वाला हूँ, तो मैं सम का फंक्शन बना के रख दूंगा, उसमें सम का फॉर्मूला लिख के रख दूंगा एक बार, और उस एक बार लिखे हुए फंक्शन को, उस एक बार लिखे हुए फॉर्मूले को मैं अब बार बार यूज़ कर सकता हूँ मेरे प्रोग्राम के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम, इन्होंने जो सी यू फंक्शन की बात ये बार बार कर रहे हैं, हम देखते हैं ये यहाँ पर कैसे इन्होंने यूज़ करके बताया. तो देखिए, शुरू की जो सबसे ऊपर वाली लाइन अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है डी ई एफ सी यू फंक्शन. मतलब ये यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, डेफिनेशन दे रहे हैं इस सी यू फंक्शन की. तो सी यू फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? क्या बोलेगा सी यू फंक्शन? सी यू फंक्शन बोलेगा टाइम टू से गुड बाय. जब कभी आप आपके प्रोग्राम में सी यू फंक्शन लगाओगे तो वो आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट करके देगा जो होगा टाइम टू से गुड बाय. बस ये जो कर दिया इन्होंने, इतना ऊपर की ये दो लाइंस, ये बना दिया इन्होंने. क्या? ये एक फंक्शन बना दिया. अब इनको जब भी अपने प्रोग्राम में कभी भी ऐसा लिखना होगा टाइम टू से गुड बाय, तो वो इतना पूरा प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास लगा के टाइम टू से गुड बाय नहीं लिखेंगे. इंस्टेड व्हाट दे विल डू, दे विल सिंपली राइट सी यू फंक्शन. वेर एवर दे नीड टू राइट टाइम टू से गुड बाय, ये वहाँ पर सी यू फंक्शन लगा देंगे. तो जैसे ही सी यू फंक्शन लगा देंगे तो क्या होगा? अबव डिफाइंड फंक्शन सी यू विल बी कॉल्ड.
वो फंक्शन यहाँ पर कॉल कर दिया जाएगा और यहाँ पर टाइम टू से गुड बाय आपकी स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ जाएगा. सो दिस इज समथिंग दैट फंक्शन जनरली डू. और देखते हैं फंक्शन के बारे में इन्होंने क्या लिख रखा है. ये एक फंक्शंस का एक जो बॉक्स दिया हुआ है इसको हम देखते हैं इसमें क्या चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई है. A function is a code that has a name and it can be reused or executed again by specifying its name in the program where needed. जहाँ पर भी आपको कुछ फंक्शन यूज़ करना है आप एक बार बना दें और बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट है ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन. दिस इज द फिफ्थ कंपोनेंट दैट वी आर गोइंग टू सी. तो जो पांचवा कंपोनेंट है वो है ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन. क्या होता है इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ. इंडेंटेशन हमने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में देखा है. इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंट करना मतलब कुछ नंबर ऑफ स्पेस मार्जिन से आगे होकर लिखना है ना. जैसे हम पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ लिखते हैं तो वो थोड़ा इंडेंट करके लिखते हैं है ना. पैराग्राफ सीधे कोने से मार्जिन से चालू नहीं होता, वो थोड़ी जगह छोड़कर सेंटर के पास से कहीं से चालू होता है. तो वो क्या किया हमने, थोड़ा इंडेंट किया है उसको, थोड़ी सी जगह छोड़कर आगे लिखा है. सिमिलरली हियर ऑल्सो वी कैन यूज इंडेंटेशन. अभी भी आपने ऊपर देखा होगा प्रोग्राम में कहीं ना कहीं इंडेंटिंग की गई है, पर वो क्यों की गई है, कैसे की जाती है वो हमको नहीं पता है. तो अब हम उसको थोड़ा सा समझते हैं. जैसे कि मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ कहाँ पर की गई है इंडेंटिंग. ये देखो, ये आप देख पा रहे हो, ये प्रोग्राम में ये डी एफ सी यू फंक्शन कोने से लिखा हुआ है बिल्कुल. ये जैसे अगर मैं इसको मार्जिन मानूँ तो ये कोने से लिखा हुआ है, पर ये कोने से नहीं लिखा हुआ. ये कोने से है इतना पूरा, ये कोने से है, पर ये कोने से लिखा हुआ नहीं है. तो ऐसा क्यों? इनको कॉर्नर से क्यों नहीं स्टार्ट किया, इसको ये थोड़ा सा इंडेंट क्यों किया हुआ है? ये जो इंडेंटिंग इतनी स्पेस खाली छोड़ी है, ये स्पेस क्यों छोड़ी है, क्या रीज़न है, क्यों छोड़ते हैं, कब छोड़ते हैं? तो ये चीज़ों को अब हम थोड़ा सा समझते हैं. बाकी जगह तो नहीं छोड़ी इन्होंने, सिर्फ उन्हीं जगह पर छोड़ी है. तो क्यों उतना स्पेस छोड़ा हुआ है उसको थोड़ा सा समझते हैं. Sometimes a group of statements is part of another statement or function. Such a group of one or more statement is called block और subcode और suite. अब देखो, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि फंक्शन. तो फंक्शन क्या कह सकते हो कि एक खुद एक फंक्शन है, उसके अंदर और बहुत सारी लाइंस है जो उस फंक्शन को डिफाइन करती है, मतलब उस फंक्शन के बारे में बताती है. तो जब कभी ऐसा कुछ हो कि एक फंक्शन है और उसी को बताने वाली, उसी को एक्सप्लेन करने वाली जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो आप लिखोगे, जो एक्सप्रेशंस या स्टेटमेंट्स जो आप लिखोगे, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंडेंट करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर कुछ लिखा है, मैंने लिखा सम फंक्शन, डी एफ सम फंक्शन, मतलब मैं एक सम फंक्शन बना रहा हूँ. तो मैं उसके बाद जब अगली लाइन में सम फंक्शन को डिफाइन करूँगा तो मैं उसको एकदम कोने से नहीं लिखूँगा. क्यों नहीं लिखूँगा उसको एकदम कोने से? क्योंकि वो जो सम फंक्शन है उसी का पार्ट है जो अब मैं उसकी अगली लाइन में लिखने जा रहा हूँ. जब वो उसका पार्ट होता है, जब उसका सब पार्ट होता है, तो उसको एकदम कॉर्नर से स्टार्ट नहीं किया जाता, उसको थोड़ा सा इंडेंट करके लिखा जाता है. और इंडेंटिंग होती क्या है, तो यू कैन सी इट हियर व्हाट इंडेंटिंग इज. 4 स्पेसेस टुगेदर मार्क द नेक्स्ट इंडेंट लेवल. 4 स्पेस छोड़कर एक इंडेंट बनता है यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर. देखो यहाँ पर भी इन्होंने जैसे बताया है, इफ़ b इज़ लेस देन 5, अगर b की वैल्यू 5 से छोटी है, ऐसा लिखा है, इफ़ b इज़ लेस देन 5. तो क्या b जब 5 से छोटा हो तो क्या करना है? तो उन्होंने बताया आपको प्रिंट करना है वैल्यू ऑफ b इज़ लेस देन 5 और प्रिंट करना है थैंक यू. अब ये कब प्रिंट करना है? जब b की वैल्यू 5 से छोटी है तब. इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर जो ये आपने ये लाइन लिखी है, इस लाइन के ये सब सेंटेंसेस हैं, मतलब कि ऊपर वाली लाइन के ही ये और सेंटेंसेस हैं, है ना. तो वो एक लाइन में तो डिफाइन नहीं हुआ, इफ़ बी इज़ लेस देन 5, सिर्फ इतना लिखने से डिफाइन नहीं हुआ आप क्या करना चाह रहे हो, तो उसके बारे में और लिखना था. जब कभी आपको उसके बारे में और लिखना होता है तो उसको बोला जाता है कि आप एक ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो और उसको थोड़ा सा इंडेंट कर कर लिखना पड़ता है. तो ये आपका एक क्या कहलाएगा, ये आपका एक ब्लॉक कहलाएगा. ये आपका एक ब्लॉक है, ठीक है. और इस ब्लॉक में पहली लाइन तो सिंपली जो मार्जिन होती है उससे लिखी जाती है, और उसके नीचे की जितनी भी लाइंस होती हैं, मतलब जितने स्टेटमेंट्स उस ब्लॉक के अंदर आएंगे, वो सारे स्टेटमेंट्स को यहाँ पर थोड़ा सा इंडेंट छोड़ना पड़ेगा
और फिर उनको लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, सो ये आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉक्स क्या होते हैं। तो ब्लॉक मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा सेंटेंस जिसके लिए हम और भी सब सेंटेंसेस बना रहे हैं। तो जो आप सब सेंटेंसेस या मोर नंबर ऑफ सेंटेंसेस जो आप उस स्टेटमेंट के लिए बना रहे हो, उनको थोड़ा सा इंडेंट कर कर लिखना होता है, और ये पूरा जो सेट ऑफ स्टेटमेंट बनता है उसको हम ब्लॉक बोलते हैं। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाइथन में होता है, सी प्लस प्लस में भी होता है, जावा में भी होता है, डॉट नेट में भी होता है, सी शार्प में भी होता है, PHP में भी होता है। जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप आपकी लाइफ में सीखोगे उन सब में आपको ये ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे। सबका तरीका अलग अलग होता है। यहाँ पर क्या करते हैं, पाइथन के अंदर ये ऐसा इंडेंट छोड़ देते हैं, सी प्लस प्लस में क्या करते हैं, ये देखो, ये ऐसा करली ब्रैकेट लगा देते हैं और इसके अंदर सेंटेंसेस लिख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितनी चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है ये क्या है, ये एक ब्लॉक है। सिमिलर केस ये वाला जो होता है करली ब्रैकेट वाला, यही का यही जावा में भी फॉलो होता है, बट पाइथन के अंदर ये बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। पाइथन के अंदर बहुत इजी गोइंग है, सिंपली ब्लॉक लिखना है तो इस तरीके से लिख दो। और हाँ, एक मेन चीज़ जो है, ब्लॉक जब भी लिखा जाता है तो उसके बाद में ये ऐसा कोलन का साइन लगाना पड़ता है। ठीक है, कोलन का साइन लगाने से ये पता चलता है कि अब उसके नीचे के जो स्टेटमेंट्स हैं वो उस ब्लॉक के अंदर के स्टेटमेंट्स हैं और वो थोड़े से इंडेंट करके लिखे जाएंगे। तो ये चीज़ें जो होती है इनको बोला जाता है ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन। ऑलराइट, इसको आप एक बार और पूरा डिटेल में पढ़ के देखना, फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आई विल बी क्लियरिंग इट आउट टू यू। यहाँ पर देखो एक और एग्जाम्पल इन्होंने बताया हुआ है, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक चेक फंक्शन लगाया है। चेक फंक्शन लगाया तो चेक फंक्शन के बाद दिख रहा है ये यहाँ पर ये कोलन का साइन लगा हुआ है, मतलब ये पूरा जितना उसके बाद ये इंडेंट कर कर लिखा हुआ है, ये सब इंडेंट करके लिखा हुआ है। मतलब ये पूरे स्टेटमेंट्स क्या हैं, इस चेक फंक्शन का सब स्टेटमेंट है। इस चेक फंक्शन के अगर ये सब स्टेटमेंट हैं तो ये जो चेक फंक्शन है, मतलब ये पूरा बॉक्स, ये क्या है, ये एक ब्लॉक है। ये क्या कहलाएगा, ये एक ब्लॉक कहलाएगा। अब देखो, उस ब्लॉक के अंदर आपने लिखा c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, अगर c की वैल्यू 50 से छोटी है तो, अब c इज़ लेस देन 50, तो आपको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है लेस देन 50, b की वैल्यू में इंटू 2 करना है और a की वैल्यू में प्लस 10 करना है। तो ये कब करना है, जब b c की वैल्यू 50 से छोटी हो। मतलब क्या हुआ, अगर c की वैल्यू 50 से छोटी है तो उसके लिए भी कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आपने डिफाइन करे। जब आपने उसके लिए कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स डिफाइन करे तो ये भी एक ब्लॉक कहलाएगा, ये भी एक ब्लॉक कहलाएगा। सिमिलरली अगर c की वैल्यू 50 से छोटी है तो आप ये रन करोगे, पर 50 से छोटी नहीं हुई c की वैल्यू, 50 से बड़ी हुई तो क्या करोगे, तो वो यहाँ पर एल्स के अंदर इन्होंने बताया है। तो क्या करोगे, प्रिंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 और a की वैल्यू को डबल कर दो, b की वैल्यू में 10 जोड़ दो। तो यहाँ पर ये कोड का क्या मेन मोटो है, क्या एम है, वो हमको नहीं समझना है। हमको ये समझना है कि ब्लॉक्स क्या होते हैं और इंडेंटेशंस क्या होते हैं। तो ये हमारा मेन एम था यहाँ पर समझना। ब्लॉक्स मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर और भी स्टेटमेंट्स हैं, तो जब आपको इनको लिखना होगा तो थोड़ा सा इंडेंट कर कर लिखना होगा, उसके सब सेंटेंसेस सब स्टेटमेंट्स को इंडेंट कर कर लिखना होता है, तो वो एक ब्लॉक बनता है। ऑलराइट, सो दिस इज इट। Now they have explained us something about the rules and conventions of Python। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि पाइथन के क्या स्टाइलिंग के रूल्स होते हैं और क्या स्टाइलिंग के कन्वेंशंस होते हैं, क्या नियम और कानून होते हैं, आप कैसा कह सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं इनकी, क्या रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। चलिए रीड करते हैं। While working in Python, one should keep in mind certain style, rules and conventions. In the following lines, we are giving some very elementary and basic style rules. कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला, statement termination. Python does not use any symbol to terminate a statement. ठीक है, पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, मतलब एक लाइन में आपका कोड हो गया तो वहाँ पर उस लाइन में बताने के लिए कि हमारा स्टेटमेंट एंड हो गया है, वो बताने के लिए आपको कोई सिंबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। सी प्लस प्लस का थोड़ा सा बेसिक देखा था, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो वाली जहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट क्लोज करना होता था, बताना होता था कि हमारा सेंटेंस ख़त्म हो गया है, तो आपको ये सेमी कोलन का साइन लगाना होता था।
इंग्लिश लैंग्वेज में आप जनरली क्या करते हो, एक सेंटेंस खत्म होता है तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक फुल स्टॉप का साइन लगाते हो, है ना, एक फुल स्टॉप का साइन लगाते हो। हिंदी में जब एक सेंटेंस खत्म होता है तो आप क्या करते हो, एक पूर्ण विराम का साइन लगाते हो। बट जब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक सेंटेंस क्लोज होता है तो ज़्यादातर जगहों पर ये सेमीकोलन का सिंबल यूज़ होता है। बट पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पर स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, स्टेटमेंट को एंड करने के लिए आपको कोई भी सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सिंपली एंटर की प्रेस कर दीजिए, आपका स्टेटमेंट एंड हो जाएगा। ठीक है। अगला, मैक्सिमम लाइन लेंथ। हर एक लाइन में कितने कैरेक्टर्स लिखे जा सकते हैं वो भी पाइथन में डिसाइडेड है। और कितने लिखे जा सकते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है 79 कैरेक्टर्स। एक लाइन में, पाइथन में एक कोडिंग लिखते समय एक सिंगल लाइन में हम 79 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है लाइन्स एंड इंडेंटेशंस। ब्लॉक्स ऑफ कोड आर डिनोटेड बाय लाइन इंडेंटेशन। ये हमने अभी समझा। जो भी एक हम ब्लॉक बनाते हैं तो ब्लॉक के अंदर के जो कोड्स होते हैं, है ना, उनको डिफाइन करने के लिए लाइन इंडेंटेशन होता है, जिसको 4 स्पेसेस से इंडेंट किया जाता है। मतलब 4 बार स्पेस दबाओगे तो मान के चलो कि वो एक इंडेंट के बराबर होता है। नेक्स्ट है ब्लैंक लाइंस। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पर जितनी लाइन खाली छोड़ोगे, एंटर एंटर दबाकर, एंटर 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 दबाकर जितनी लाइंस आप खाली छोड़ोगे, जितनी लाइंस खाली छोड़ रहे हो उनका अपना एक मतलब है, उनका अपना एक मीनिंग है। जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है, यूज 2 ब्लैंक लाइंस बिटवीन टॉप लेवल डेफिनेशंस, 1 ब्लैंक लाइन बिटवीन मेथड फंक्शन डेफिनेशंस, फंक्शन एंड मेथड शुड बी सेपरेटेड विद 2 ब्लैंक लाइंस एंड क्लास डेफिनेशन विद 3 ब्लैंक लाइंस। हम अभी इतने एडवांस लेवल पे नहीं पहुँचे कि हम क्लास डेफिनेशन क्या होती है वो समझें, और उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन तो हमको पता है कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करता है, तो वहाँ पर भी हमको कुछ नंबर ऑफ लाइंस छोड़नी होती है। तो यहाँ पर कब कहाँ कितनी लाइंस छोड़ना है वो भी यहाँ पर डिसाइडेड है ऑलरेडी। नेक्स्ट, अवॉइड मल्टीपल स्टेटमेंट्स ऑन वन लाइन। देखो क्यों अवॉइड मल्टीपल स्टेटमेंट्स ऑन वन लाइन, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ पर 79 कैरेक्टर्स ही इस्तेमाल हो सकते हैं। तो एक लाइन में आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखोगे तो भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो वहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा जब 79 लाइन्स खत्म, 79 कैरेक्टर्स खत्म हो जाएंगे तो, है ना। इसीलिए आप लोगों को मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एक ही लाइन में लिखना अवॉइड करना चाहिए। पर अगर आप फिर भी लिखते हो तो पाइथन को कैसे पता चलेगा कि ये एक स्टेटमेंट खत्म हुआ है, अब दूसरा स्टेटमेंट चालू हो रहा है। अलग अलग लाइन में लिखते तो एंटर दबा देते, पर एक ही लाइन में लिख रहे हो तो एंटर तो दबाओगे नहीं। तो क्या करना होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, सेमी कोलन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक लाइन में अगर 2 स्टेटमेंट्स लिख रहे हो तो दोनों स्टेटमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर सेमी कोलन का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है वाइट स्पेस। You should always have white space around operators and punctuations but not with parenthesis। यहाँ पर white spaces लगाने के लिए भी इन्होंने बताया हुआ है कि आप कौन कौन से white spaces यूज़ कर सकते हो और कैसे यूज़ कर सकते हो। अगला यहाँ पर दिया हुआ है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों को अलग अलग पाइथन ट्रीट करेगा। मतलब कैपिटल लेटर्स में A to Z जो कैरेक्टर्स हैं और स्मॉल लेटर्स में जो A to Z कैरेक्टर्स हैं उनको पाइथन अलग अलग ट्रीट करता है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कैपिटल लिखा है तो उसका अलग मीनिंग होगा, स्मॉल लिखा है तो उसका अलग मीनिंग होगा। डॉक स्ट्रिंग कन्वेंशंस, तो यहाँ पर पाइथन के अंदर डॉक स्ट्रिंग्स यूज़ की जाती हैं। डॉक स्ट्रिंग्स मतलब क्या, डॉक स्ट्रिंग्स मतलब ट्रिपल कोट्स में लिखे जाने वाले स्ट्रिंग्स, है ना, तो उनको बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग। और आखिरी दिया हुआ है आइडेंटिफायर नेमिंग। आइडेंटिफायर नेमिंग जैसे आपने दिया नेम इज इक्वल्स टू आन्या, कमीशन इज इक्वल्स टू 10.52। तो जो नेम कमीशन ये जो आपने नाम दिए, ये नाम जो है आइडेंटिफायर के, ये नाम लिखने के लिए भी कभी भी स्पेस नहीं दिया जाता। जैसे आपको लिखना है फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट स्पेस नेम ऐसा नहीं लिख सकते, जबकि आपको अगर लिखना है वहाँ पर तो स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर लिख सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल से समझो, यहाँ पर जैसे इन्होंने लिखा लोन अमाउंट, एक मिनट, हाँ, ये जैसे इन्होंने लिखा है लोन अमाउंट, तो लोन और अमाउंट के बीच में स्पेस तो आप लोग को दिख रहा है, पर क्या स्पेस है, नहीं, वहाँ पर अंडरस्कोर का साइन है। या तो आप इस तरीके से लिख लो, अंडरस्कोर लगा लो 2 सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए, या तो फिर एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं कैमल केसिंग। ठीक है, या तो आप कैमल केस का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब कि जो अलग अलग वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से आप बना रहे हो उनके पहले वर्ड्स को कैपिटल कर दो। जैसे कि लोन अमाउंट था, अंडरस्कोर नहीं लगाना है तो इस तरीके से लिख दो, लोन का एल कैपिटल कर दो, अमाउंट का ए कैपिटल कर दो।
या तो एक और तरीका है, एल छोटा रहना तो ए कैपिटल कर दो, तो भी आइडेंटिफाइबल हो जाएगा कि ये लोन लिखा हुआ है और अमाउंट लिखा हुआ है। ऐसा लोना और अमाउंट ऐसा नहीं पढ़ने में आएगा, सही पढ़ने में आएगा कि आपने क्या लिखा हुआ है वहाँ पर, है ना। तो दिस इज इट स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई विल बी सेंडिंग यू द पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, so just download it and go through what we have studied today. And if you have doubts, you can directly ask in the comments or you can ask on the WhatsApp group. Okay, thank you students, see you in the next class.